welcome back. In this chapter 18, body fluids and circulation. Earlier, we started with human circulatory system. We said कि our circulatory system is one of the 8 organ system present in a body. मतलब हमारे शरीर के अंदर जो 9 ऑर्गन सिस्टम है उसमें से एक ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हमने पहले ही स्टार्ट कर दी और ये कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स. लेट अस नो एवरीथिंग अबाउट ब्लड, देन ब्लड वेसल and a pumping organ, heart. As you know, we already completed every aspect of blood. We have seen the introductory part of a blood, the detailed composition of the blood. We talked about blood coagulation. We talked about the blood groups, RH factor, compatible and non-compatible blood groups. ये सारी बातें हमने कर दी है. हमने जेनेटिक्स भी देखा. हमने ब्लड ग्रुप के लिए 1 जीन, 3 अलील, 6 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप, वो सब हमने कंप्लीट किया. तो मैं मान के चलता हूँ कि पिछले 4 वीडियो लेक्चर में हमने ब्लड थरली कंप्लीट किया. नाउ यू नीड नॉट टू गो थ्रू एनी रेफरेंस बुक आल्सो. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट ब्लड वेसल. तो लेट अस स्टार्ट. ब्लड वेसल्स. सो हाउ विल यू डिफाइन ब्लड वेसल? मस्क्यूलर इलास्टिक ट्यूब्स which carries the blood from heart to tissue or tissue to heart are called as blood vessels. So I said blood vessels are muscular elastic tubes that carries the blood from heart to tissue or tissue to heart. Second point, the study of blood vessel is called angiology, as if the study of blood is hematology, study of heart is cardiology. So study of blood vessel is angiology, where angion is vessel and logos means to study. Next, you won't believe, on an average a human body of a size 5 feet 6 inches has a network of blood vessel to an extent of 1 lakh kilometers, and a human heart equal to size of a clenched fist is able to push the blood all the way. तो सर तुम्ही म्हणता की ब्लड वेसलचं जे जाळं आहे आपल्या शरीरात, ॲव्हरेज ह्युमन हाईट 5.5 फूट आहे, त्याच्यात ब्लड वेसलचं नेटवर्क किती आहे? 1 लाख किलोमीटर. आणि बन मुट्ठी जितना हार्ट काबिल है, सक्षम है, उसमें क्षमता है आखिरी छोर तक ब्लड पुश करने की. सो मस्क्यूलर इलास्टिक ट्यूब्स दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट आर ब्लड वेसल. द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी. एंजियोन इज वेसल. वी हैव अ नेटवर्क ऑफ some 1 lakh kilometer blood vessel in our body. You see, the blood vessels are mesodermal in origin. So sir, blood is also mesodermal in origin. Blood vessels are mesodermal in origin.
Heart is also mesodermal in origin. It means entire circulatory system is mesodermal in origin. What is mesodermal? See, we are triploblastic. Our first cell of the life, from where the life start, is zygote. Zygote after cleavages, that is division, forms morula. Morula forms blastocyst. Blastocyst stick up the endometrium called implantation, and then the cells of blastocyst forms the three primary germinal layer: ecto, meso, endoderm. So some part came from ectoderm, some from mesoderm, some from endoderm. So our circulatory system, that is today's concern, is mesodermal in origin. So blood vessels are mesodermal in origin. Next, now whatever a lakh kilometer network of vessel might be there in a body, but the blood vessels are mainly of three type. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की शरीरात असू द्या 1,00,000 किलोमीटर ब्लड व्हेसलचं जाळं, पण ह्या ब्लड व्हेसलचे प्रकार मात्र तीनच आहे. आर्टरी, दॅट ऑलवेज कॅरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. वेन, that always carry the blood towards the heart, and capillaries, they are meant for exchange of material between the cell and a blood. So blood vessels are muscular elastic tubes that carries the blood from heart to tissue and to heart. Blood vessels actually are mesodermal in origin. Our body has a network of vessels to an extent of 1,00,000 kilometer. The study of blood vessel is called angiology, and blood vessel fall in three categories: artery, vein, and capillary. Now let us start for the three kind of blood vessel, that is artery, vein, and capillary. So first let us start artery, this one. First point, artery always carry the blood away from the heart. So carries blood away from heart to टिश्यू. तसं तुम्ही असं म्हटलं की आर्टरी नेहमी रक्त घेऊन जातात हार्टपासून टिश्यूकडे. नेहमी जो भी हार्ट से दूर जाएगी वो रहती आर्टरी. सेकेंड, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. तो सर पहले तो आप कहते हैं कि आर्टरी हमेशा ब्लड ले जाती हार्ट से दूर टिश्यू की तरफ. फिर कहते कि आर्टरी में हमेशा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक को छोड़ के, एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. अब क्या रहती पल्मोनरी आर्टरी? See, human heart is completely four chambered. इंसान का हृदय 4 कंप्लीट कप्पों का होता है. जैसे मछली में 2 कप्पे होते हैं, एक एट्रियम
एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन में 3 कप्पे होते हैं, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में वापस 3 कप्पे होते हैं, 2 एट्रिया एंड इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। बट एव्स एंड मैमल्स, पंछी और स्तनधारी प्राणी, इनका हृदय कंप्लीट 4 कप्पों का होता है। द अपर 2 चेंबर्स, upper 2 chamber are called atria, singular atrium. सो सर, हे जे वरचे 2 कप्पे आहेत ते ॲट्रिया आहे, सिंग्युलर ॲट्रियम. दे आर ब्लड रिसिव्हिंग चेंबर. सो राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम. तो वरचे 2 कप्पे ॲट्रिया असतात, एकाला ॲट्रियम म्हणायचं. 2 ॲट्रिया कोणते आहे? राईट आणि लेफ्ट. वो ब्लड को सिर्फ रिसीव करते. सो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सारे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. मतलब सर एंटायर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इवन हृदय का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हृदय ने मसल्स ने यूज किया, वो सारा जमा होता इन राइट एट्रियम. इट कम्स डाउन इन राइट वेंट्रिकल. तो लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आर ब्लड पुशिंग चेंबर. अच्छा, वरचे 2 कप्पे ॲट्रिया ते ब्लड रिसीव करतात, खालचे 2 कप्पे वेंट्रिकल ते ब्लड पुश करतात, ढकलतात. तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स. सो दोनों एट्रिया का ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल में. आत्ता लक्ष द्या, सारे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और ये राइट वेंट्रिकल से अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब गया इन पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक म्हणजे झाडाचं खोड जे असतं त्याला ट्रंक म्हणतात. और इसकी 2 है शाखा, पल्मोनरी आर्टरी. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी. सो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड. इट इज द एक्सेप्शन. बाकी सब में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तीसरा पॉइंट, आर्टरीज आर डीपली सीटेड इन अ बॉडी. माने ऊपर ऊपर जो रहती वो वेन्स है और आर्टरी डीप रहती. सो आर्टरीज आर डीपली सीटेड इन बॉडी. चौथा पॉइंट, द ब्लड फ्लोज इन आर्टरी अंडर हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर. मतलब आर्टरी में से जब ब्लड दौड़ता है तो उसकी गति भी ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि आर्टरी में ब्लड कौन ढकेलता?
हार्ट, और आर्टरीज रहती है हार्ट के करीब, और इसीलिए वेलोसिटी भी ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, यदि हम आर्टरी पे फिंगर प्रेस करके रखें, द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इज रिस्ट, रेडियल आर्टरी यहां पे है, तो वन कैन फील द जर्क, झटके, प्रेशर वेव। सो पल्स कैन बी फेल्ट ऑन आर्टरी। तो सर आर्टरी ब्लड हार्ट से दूर ले जाती, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी शरीर में डीपली सिचुएटेड है, आर्टरी में ब्लड बहता है अंडर हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी, और इसीलिए उस पर झटके, पल्स वेव महसूस होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आहे की एकीकडे तुम्ही म्हणता की त्या डीप आहे, दुसरीकडे म्हणता की त्याच्यावर बोट ठेवलं की आपल्याला झटके महसूस होतात। तो अगर वो डीप है तो फिर उस पे उंगली कैसे रखते हैं? कुछ आर्टरी बोन पे चढ़ जाती और वो सुपरफिशियल हो जाती, जैसे कि हमारी रेडियल आर्टरी है, और रिस्ट में आप लोग यहाँ पे ये फिंगर रख सकते एंड यू कैन फील अ पल्स। द पल्स रेट इज ऑलवेज इक्वल टू हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट, द वॉल ऑफ आर्टरी। तो समझो ये कोई आर्टरी है, ये है उसकी वॉल, और ये अंदरूनी जो जगह है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। म्हणजे ये है उसकी वॉल और ये है उसका लूमेन, अंदरूनी जगह। तो सी, द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक एंड मोर इलास्टिक। तो ये जो वॉल है, सो दिस वॉल इज थिक एंड मोर इलास्टिक। तो अगर वॉल थिक है तो अंदर जगह कम है, तो ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो। तो आर्टरी नेहमी रक्त हृदयापासून दूर नेते, आर्टरीमध्ये फक्त ऑक्सिजनेटेड ब्लड असते एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ज्याच्यामध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे। आर्टरी डीपली सिच्युएटेड असतात, आर्टरीमध्ये ब्लड असते अंडर हाय वेलॉसिटी अँड प्रेशर, म्हणून पल्स आपल्याला फक्त आर्टरीवरच महसूस होतात। आर्टरीच्या वॉल थिक असतात आणि त्याचं लुमेन नॅरो असतं। आगे, अगर किसी आर्टरी को कट करे और उसको खाली कर दे, मतलब वो एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो स्टिल इट कुड मेंटेन इट शेप एंड डू नॉट कोलॅप्स। म्हणजे चपकत नाही का? कारण त्याची वॉल आहे थिक। सो नॉन कोलॅप्सिबल बिकॉज द वॉल इज थिक। म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की आर्टरी कट केली, त्याच्यातलं रक्त काढून टाकलं, तरी त्याचा सिलेंड्रिकल शेप ती मेंटेन करते, कारण त्याची वॉल कशी आहे? ठीक आहे, ती चपकत नाही, कोलॅप्स नाही होत। नेक्स्ट, आर्टरी डू नॉट कंटेन ब्लड आफ्टर डेथ, सो आर्टरीज आर एम्प्टी आफ्टर डेथ।
सो दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती तो ऐसे मृत व्यक्ति के आर्टरीज में खून नहीं होता, क्योंकि आर्टरी में खून ढकेलता हार्ट और वही बंद हो गया और इसलिए आर्टरी एम्प्टी रहती। तो आर्टरीज आर एम्प्टी आफ्टर डेथ, they maintain the shape means non-collapsible. The lumen of artery is narrow because the wall is thick. It is elastic. The pulse can be felt on artery because the blood is flowing under high velocity and pressure. They are deeply seated in a body. They contain oxygenated blood except pulmonary artery, and they carries the blood away from heart. Last, no internal wall to check backflow of blood. मतलब ये अगर कोई आर्टरी है तो इस आर्टरी में ऐसे बीच बीच में वाल्व नहीं है, मतलब कि ये ब्लड पुश किया, अब ये वापस नहीं आना चाहिए तो बीच में वॉल डाल दिए, ऐसे इंटरनल वॉल नहीं है बिकॉज द ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। तो क्यों बैकफ्लो होगा? सो इंटरनल वाल्व्स आर एब्सेंट बिकॉज ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। सो आर्टरीच्या आतमध्ये रेग्युलर इंटरवलवर इंटरनल वाल्व नसतात, कारण बॅकफ्लो होतच नाही, कारण ब्लडचं प्रेशर जास्त आहे, तो बैकफ्लो होने का सवाल ही नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्टरी की वॉल में आगे मैं बताऊंगा जो ट्यूनिका मीडिया है, सो ट्यूनिका मीडिया has more muscle and it is thick। तो ये ट्यूनिका मीडिया क्या है वो मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। सो ट्यूनिका मीडिया हैज मोर स्मूथ मसल एंड द ट्यूनिका मीडिया इज थिक। तो आत्ता तुम्हाला आर्टरी बद्दल काय समजलं? तो सर आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के वो डीपली सिचुएटेड रहती, उसमें ब्लड जो है अंडर हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर रहता, तो पल्स उस पर फील की जा सकती, उसकी वॉल थिक और ज़्यादा इलास्टिक रहती, और अंदरूनी लुमेन बहुत नैरो रहता है और वो अपना शेप मेंटेन करती है। मृत्यु के पश्चात वो खाली रहती है, उसका ट्यूनिका मीडिया थिक है, उसमें ज़्यादा स्मूथ मसल्स है एंड उसमें इंटरनल वॉल्स नहीं है। आता मान के चलो कि मेरे हाथ में कोई आर्टरी है, और मैंने इस आर्टरी को दिया ट्रांसवर्स कट और आपको ऐसा करके दिखाया, तो वो है आर्टरी के वॉल की हिस्टोलॉजी। नाउ दिस इज अ नैरो ल्यूमेन और यहां से यहां तक ये पूरी है वॉल ऑफ आर्टरी। सो वॉल ऑफ आर्टरी, इट इज थिक एंड मोर इलास्टिक। अब इस वॉल में 3 लेयर्स है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना।
तो सबसे बाहर दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया जो है उसमें कोलाजेन फायबर है, मतलब कोलाजेन प्रोटीन पासून बनलेले फायबर्स। इस ट्यूनिका एक्सटर्ना में कोलाजेन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स है। तो सर ये तो खुद ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में भी ब्लड वेसल रहती क्या? हाँ, वेसल ऑफ वेसल कॉल्ड वासा वैसोरम, मतलब आर्टरी की जो वॉल या वेन की जो वॉल है उसमें भी तो सेल्स है, उनको भी तो नरिशमेंट चाहिए, और वो इतनी थिक है वॉल कि उतना डिफ्यूजन नहीं होता। तो ये डिफ्यूजन करवाने के लिए उसमें है खुद की वेसल्स। मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या क्या है? कोलाजेन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ऑल्सो नर्व्स। याच्यात नर्व्सही असतात, नर्व सप्लाय असतो, तो कट होगी तो पेन होगा। तो दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना containing कोलाजेन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और उन वेसल्स को क्या कहते हैं? वासा वैसोरम। नाउ द सेकेंड लेयर। सो दिस सेकेंड लेयर called tunica media. Tunica media is a middle layer. It contains smooth muscle. तो सर स्मूथ मसल म्हणजे विसेरल मसल, जो हमारे वश में नहीं है, जो नॉन स्ट्राइटेड है। मतलब महज सोच के हम उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। जैसे मैं हाथ ऊपर कर सकता, नीचे कर सकता, करीब ला सकता, दूर ले जा सकता, क्योंकि ये मसल वॉलंटरी है। बट ये जो मसल है दे आर इनवॉलंटरी, नॉट अंडर विल कंट्रोल। एंड द स्मूथ मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल, दे आर प्रेजेंट इन ट्यूनिका मीडिया। और अब ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना में ये जो है, जिस पे अभी मेरा मार्कर घूम रहा है, सो दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड फ्लैट स्क्वामस epithelium, that is epithelial cells. So this is एंडोथेलियम। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन प्लस अंदर से है फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल कॉल्ड एंडोथेलियम, एंड दीज टू टुगेदर फॉर्म्स ट्यूनिका इंटरना। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना with a elastic membrane and flat squamous epithelium। तो सर ये अंदर से फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम माने एंडोथेलियम क्यों है? दे
अवॉइड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ब्लड. तो इथून ब्लड जाणार है. तो जैसे अगर फर्श चिकना है, स्मूथ है, तो फिर रेजिस्टन्स कमस कम होगा. तो याच्यातून रक्त वाहतं, तर त्याला विरोध नाही झाला पाहिजे म्हणून स्मूथ सरफेस देण्यासाठी असतात. तो ये नीट क्वेश्चन है. ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड विथ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम. तो देखो ये जो अंदर है दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन. सो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना अशा असतात 3 लेयर्स. तो अब ये एवरीथिंग अबाउट आर्टरी कंप्लीट हुआ. अब हम बात करेंगे दूसरे ब्लड वेसल की, दैट इज वेन. सो पहला पॉइंट, वेन कैरीज द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. सो कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट फ्रॉम टिश्यू. तो सर आर्टरी कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू and vein carries the blood from tissue to heart, that is towards the heart without exception. Second, so vein carries deoxygenated blood except pulmonary veins. तो सगळ्या ज्या व्हेन असतात त्या टिश्यूकडून हार्टकडे येतात. त्यांच्यात डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं. फक्त पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है. तो ये पल्मोनरी वेन क्या है? तो अभी अभी मैंने कहा कि ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड. दिस इज राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब यहां आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, वो नीचे आया इन राइट वेंट्रिकल, वहां से निकली पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इन पल्मोनरी आर्टरी. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. मतलब आपका जो है राइट वेंट्रिकल वो ब्लड को पुश करता है लंग्स के लिए, और लंग्स में उस ब्लड का होता ऑक्सीजनेशन. एंड हे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स इन लेफ्ट एट्रियम. म्हणजे लंग्समध्ये ऑक्सिजनेट झालेलं ब्लड कुठे येतं? लेफ्ट एट्रियममध्ये येतं. कोण आणते? 4 पल्मोनरी वेन. सो ये है 2 पल्मोनरी वेन, ये उनके ओपनिंग्स, और ये है 2 पल्मोनरी वेन, ये उनके ओपनिंग्स. म्हणजे ह्या 2 इकडून आल्या इथे उघडल्या, इकडून आल्या इथे उघडल्या. तो ये 4 पल्मोनरी वेन है, उसमें तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दैट इज अ एक्सेप्शन. नाउ veins are superficial, arteries are deeply seated, veins are superficial. तो हम लोग जो नीले नीले रंग की वेसल्स देखते हैं स्किन के ऊपर, दे आर वेन्स. मतलब वो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट ले जा रही. यस. और इसीलिए कोई भी सलाइन हो या कोई भी औषधि हो
वो वेन में डालते ताकि वो टूवर्ड्स हार्ट जाए और हार्ट उसको बॉडी में सर्कुलेट करे। तो द ब्लड फ्लोज इन वेन अंडर लो प्रेशर एंड वेलोसिटी एंड हेंस पल्स माने प्रेशर वेव झटके कैन नॉट बी फेल्ट ऑन वेन। सो वेन में जो खून दौड़ता वो आराम से लो वेलोसिटी एंड लो प्रेशर। क्यों? देखो, पहले हार्ट टू आर्टरी आया, आर्टरी टू आर्टेरियोल, आर्टेरियोल टू कैपिलरी, कैपिलरी टू वेन्यूल, वेन्यूल टू वेन। तो काफ़ी दूर आ चुका है ब्लड, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, और इसीलिए पल्स कैनॉट बी फेल्ट ऑन द वेन, इट कैन बी फेल्ट ओनली ऑन आर्टरी। In artery, the blood is under high velocity and pressure. In vein, it is low velocity and pressure. Next, the wall of vein is thin and less elastic. तो सर आर्टरी की जो वॉल है वो थिक है, मोर इलास्टिक है, और वेन की थिन है, लेस इलास्टिक है। अब देखो, you could see the wall of artery is thick, तो अंदर से जो लुमेन है वो छोटा है, और यहां वेन की वॉल कैसी है? थिन, तो अंदर की जगह कैसी है? वाइडर। तो ये वॉल अगर है थिन तो जगह अंदर ज्यादा होगी, तो ल्यूमेन इज वाइडर। तो आर्टरी की वॉल थिक है और वेन की थिन। यहां लुमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो बिकॉज वॉल इज थिक, और यहां लुमेन इज वाइडर बिकॉज वॉल इज थिन, पतली है। नाउ इट इज कोलैप्सिबल व्हेन एम्प्टी। तो फर्ज करो कि कोई वेन को कट किया, खून गिर गया, तो वो चपक जाती। क्यों? क्योंकि वॉल कैसी है? थिन, इट कैनॉट मेंटेन इट्स शेप, सो इट इज कोलैप्सिबल। अ रिटेन ब्लड आफ्टर डेथ। तो दुर्दैवी कोणाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या आर्टरी खाली असतात, त्याच्यात ब्लड नसतं, पण व्हेनमध्ये मेल्यानंतरही, मृत्यूनंतरही ब्लड असतं. नेक्स्ट, इंटरनल valves are present to prevent backflow. तो सर वेनमध्ये मध्ये मध्ये कशासाठी इंटरनल वॉल्व्स असतात? बैकफ्लो नहीं झाला पाहिजे. क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर इज लो. फर्ज करो ये कोई वेन है और ये है इंटरनल वैल्व्स. अब ये ब्लड पुश हो गया, सो हार्ट टू आर्टरी टू आर्टेरियोल टू कैपिलरी टू वेन्यूल टू वेन. अब हार्ट टू आर्टरी टू आर्टेरियोल टू कैपिलरी टू वेन, तो ये वापस नहीं जाना चाहिए, तो बीच बीच में वैल्व्स है. दिस वैल्व ओपन टूवर्ड्स हार्ट और ब्लड वापस आने की कोशिश करे तो बंद हो जाएंगे. सर या वाल्वचा शेप काय असतो? सेमी
सर्क्युलर म्हणजे सेमिलुनार असतो, त्यांना सेमिलुनार वॉल म्हणतात. 3 असतात ते. तो ठीक आहे सर. इंटरनल वॉल्स आर प्रेझेंट टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो बिकॉज ब्लड इज अंडर लो प्रेशर. अँड लास्ट, सो ट्युनिका मीडिया इज थिन विथ लेस स्मूथ मसल. आणि इकडे ट्युनिका मीडिया कशी होती? ठीक. नाउ vis-a-vis you could compare. Arteries carry the blood away from heart, vein carry it towards the heart. Arteries are deep, veins are superficial. Arteries contain oxygenated blood, vein contain deoxygenated blood. In artery, the blood pressure and velocity is high. In vein, both are low. Pulse can be felt, pulse cannot be felt. The walls are thick, lumen is narrow. The wall is thin, the lumen is wider. They do not collapse, non-collapsible, they are collapsible. They do not contain blood after death, they contain the blood even after death. So these are the differences. अब हमें देखनी है वेन के वॉल का हिस्टोलॉजी. तो it is same 100% as that of the histology of wall of artery. So this is tunica externa. Here also tunica externa. Tunica media. Here also tunica media. Then smooth blood flow के लिए flat squamous epithelium. Here also flat squamous epithelium. So this is tunica externa. This is tunica externa. This is tunica media. This is tunica media. Now check. Tunica media is thick in artery and thin in vein. More smooth muscle, less smooth muscle. Lumen is narrow, lumen is wider. और यहां पे सेमिलुनार वॉल्स है टू प्रिवेंट बैकफ्लो. तो अब हमने कंप्लीट किया आर्टरी एंड वेन और हम बात करेंगे कैपिलरी की. सो वी सेड द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, आर्टरी, वेन एंड नाउ कैपिलरी. अब ध्यान दो. Capillaries are finest blood vessel, microscopic blood vessel. Their thickness is hardly 10 micrometer. So capillaries are finest blood vessels. They are microscopic, hardly 10 micrometer thickness. Capillaries are functional blood vessels. So they are functional blood vessels. तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि आर्टरी या वेन, आर्टरियोल या वेन्यूल ये नॉन फंक्शनल है? थ्रू एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू, capillaries are functional. Artery, arteriole, venule, vein are non-functional. मतलब ये कोई आर्टरी है, ये आर्टेरियोल है, या ये कोई वेन है,
और ये वेन्यूल है। तो यहां से कोई एक्सचेंज नहीं होता, ना यहां से ना यहां से ना यहां से। म्हणजे आर्टरिओलच्या वॉल एवढ्या थिक असतात की उसमें से ग्लूकोज या ऑक्सीजन नहीं बाहर जा सकता, CO2 वाटर अंदर नहीं आ सकता, एक्सचेंज इज नॉट परमिटेड। और ये सब कुछ होता है कैपिलरी के थ्रू। सो बिकॉज दे आर फाइनेस्ट, उनकी वॉल बहुत ही थीन होती है। इट परमिट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड अ ब्लड। So they are functional blood vessels, not artery, arteriole, venule and vein. Capillaries are branches of arteriole and they rejoin to form venule. म्हणजे सर कॅपिलरी ह्या आर्टरिओलच्या ब्रांच आहेत आणि त्या एकत्र येऊन व्हेन्यूल बनतो। देखो, सो ये है आर्टरी। अब ये आर्टरी की ये जो ब्रांचेस है दे आर आर्टेरियोल। अब ये आर्टेरियोल की जो ब्रांच है सो दीज आर कैपिलरी और ये जुड़ जाएगी। ये कैपिलरी जुड़ जाएगी और बनेंगे वेन्यूल। सो आर्टेरियोल की ब्रांच है कैपिलरी और वो जुड़ के बनता है वेन्यूल। सो ब्रांचेस ऑफ आर्टेरियोल है एंड दे रिजॉइन टू फॉर्म वेन्यूल। मतलब कैपिलरीज आर इंटरपोज्ड बिटवीन आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। सो इंटरपोज्ड बिटवीन आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। अब ये कैपिलरीज एक्सचेंज क्यों करने देती है? सो ये है सेल्स और ये आर्टरी से ब्लड आर्टेरियोल में और आर्टेरियोल से कैपिलरी में। तो यहां से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कैन एंटर द सेल और सेल से CO2 एंड वाटर कैन एंटर इन अ ब्लड। क्यों? क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत पतली है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो सर कॅपिलरीची जी वॉल आहे ती इतकी पतली आहे की त्याच्यात फक्त बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि त्याच्यावर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है। मैं आपको एग्जांपल देता कि दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज ट्यूनिका मीडिया, दिस इज elastic membrane and this is a single layer of flat squamous epithelium called endothelium। ऐसी रहती आर्टरी, आर्टरियोल, वेन या वेन्यूल। जर आपण काढून टाकलं ट्यूनिका एक्सटर्ना, यदि हम हटा दे ट्यूनिका मीडिया, तो सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर ये फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम कॉल्ड
एंडोथेलियम। तो ये इतनी पतली मेम्ब्रेन है, इट एक्ट एज ए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो जैसे पतला कपड़ा है तो उसमें से चीज़ों को हम फिल्टर कर सकते। तो कैपिलरी अलो द एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड अ ब्लड, सो दे आर फंक्शनल वेसल्स। सो ये ध्यान रहे, ये नीट क्वेश्चन है। द वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर मेड फ्रॉम सिंगल लेयर of flat squamous epithelium called endothelium. तो नीट क्वेश्चन असा विचारतात, वॉल्स ऑफ कॅपिलरी आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम, that is flat squamous epithelium. The word capillary was given by Marcello Malpighi 1661, 1661, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ असेल त्या काळात हा वर्ड कॅपिलरी दिला होता मार्सेलो मालपिघीनी. तो कॅपिलरीज आर फाइनेस्ट ब्लड वेसल, दे आर माइक्रोस्कोपिक विथ अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर. Capillaries are functional blood vessel. They allow the exchange of material between blood and cell. Capillaries are branches of arteriole and they rejoin to form venule. They are interposed between arteriole and venule. The walls of capillary are very thin, made from a single layer of flat squamous epithelium or endothelium. नुसतं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और त्याच्यावर. सो मैं अगर सीधा निकाल के बताऊं तो फर्ज करो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है, इतनी पतली. तो ऐसी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो रहती चपकी, वो हमारे शरीर में लंग अल्वेओलाई में है एंड वॉल ऑफ कैपिलरी में है, और दोनों जगह एक्सचेंज होता है. ये ॲनिमल टिश्यू में आएगा आपको. तो आता सर इथे आपण आर्टरीबद्दल पाहिलं, आर्टरीच्या वॉलची हिस्टॉलॉजी पाहिली की ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मीडिया, ट्युनिका इंटरना. व्हेनबद्दल पाहिलं, त्याच्या वॉलची हिस्टॉलॉजी पाहिली, सेम 3 लेयर, ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मीडिया, ट्युनिका इंटरना. अपन कैपिलरीज बद्दल पाहिलं. तो अब यहाँ कंप्लीट हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में. और अगला जो आपका लेक्चर होगा 5वां, उसमें हम लोग हार्ट स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.